Okay, good morning, class 9 students. Today we'll start one new chapter from political science. The main things in the chapter we will focus on, and the name of the chapter I'm writing in the blackboard, making a working of institutions. Your chapter starts with the example of an office order or office memorandum. It was signed by a joint secretary on 13th August 1990, and that officer was working in the Department of Personnel and Training and the greater ministry to which the department belonged. The name of the ministry is the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. This is the ministry's name, and this is department's name, Department of Personnel and Training. And this officer signed on 13th August 1990. So many letters the officers daily signs, but this letter was a particular one, was a very important one, for which it has got a mention in your textbook. Because in this letter it was written that the socially and economically backward classes, in those days they were called SEBC, socially and economically backward classes. इसको I will wipe it. This memorandum or this office order signed by your joint secretary, which is given in your textbook, is important because in this letter it was written that 27% reservation, 27% reservation should be given to the SEBC, socially and economically backward classes. Later on it was this abbreviation was converted to OBC. Okay, other backward classes, as you know it today. So now we will come to step by step what happened, how this letter came to be signed. Here you will get how the ministry works. Actually, we will go to the history of this letter. We will go to the history of this how 27% reservation in a very nutshell form will say. And while discussing about the passing of this bill or making the bill an act, when we discuss about the process, then we will automatically learn something about how the decisions are taken in the parliament. Okay? So let us start. Long back in 1979, the Backward Classes Commission, it was called Second Backward Classes Commission, was formed. So up to here you have understood that the letter mentioned in your textbook in the first paragraph is important because by this letter 27% reservation to the OBC was granted, which they are enjoying now also, nowadays also. Okay. So it was a very remarkable letter. Now let us go to the genesis of this letter, to the what were the circumstances in which the letter came or how it was implemented. In 1979, the second Backward Classes Commission, Backward Classes Commission was formed BP Mandal was appointed its chairman. You keep in your mind, in 1979, one commission, it is not something related to the money. It is not that commission, it is a committee. Okay, it is a committee formed under the chairmanship of BP Mandal.
Now BP Mandal, he was a very veteran politician, okay, and he was for a short time in 1968, he worked as the Chief Minister of Bihar also. He was an MP otherwise from the Madhepura constituency. MP from the Madhepura constituency of Bihar for 3 times, and he was an experienced politician, and he was for a short duration, he was the Chief Minister of Bihar also in 1960. So under this great leader, BP Mandal, his full name was Bindheshwari Prasad Mandal. Okay, that commission was formed under his leadership. Okay, BP Mandal Bindheshwari, BINDHESWA Bindheshwari Prasad Mandal. Okay, so Bindheshwari Prasad Mandal, he was entrusted with the duty of identifying or discussing with different state governments and identifying such classes which are economically and socially backward. Okay, so he definitely have to go to different state governments and consult with them, take different data, verify the data. So it was a very big work that was completed successfully by BP Mandal, and he submitted the report to the parliament in 1980. तो 1980 में ये रिपोर्ट आ गया, but this report was not implemented by the government. The then Congress government led by Indira Gandhi in 1984. Indira Gandhi passed away. So in 1980 she was the prime minister. But the report of the commission, the report of BP Mandal was not put into effect. It was not executed. The government has the liberty, the government has the jurisdiction whether to implement the report or not to implement the report. That is up to the government, and the government did not implement it. So then came like this, the year 1989 came, and in 1989 election was there. During this election, the Janata Dal party took this issue as a great public issue and said in its meetings, in its canvassing for the election, in the public meetings through different media, Janata Dal gave much popularity to Mandal Commission report and said that if our party comes to power, that if you the people, you the citizens cast your valuable vote for our support, and if our party is successful to form the government, then we will implement this bill. हम लोग इसको काम में मतलब कारगर करेंगे. So accordingly, the people also gave support to Janata Dal and is alleged, and one allied government, that means alliance government, was formed in 1989. तो 1989 में VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए. यह कोalition गवर्नमेंट था. ओके, ही वाज द 11th प्राइम मिनिस्टर. VP सिंह 11th PM प्राइम मिनिस्टर. ओके, दिसंबर 2 1989 में ये आ गए. Okay, then accordingly he was true to his promise, and he really implemented this bill. The president in its address to the parliament said that the government is going to implement the bill, that you will get there. Then the cabinet also took the decision that it should be implemented. Accordingly, the cabinet decision was told to both of the houses of the parliament by the prime minister कि हाँ कैबिनेट मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है कि हम लोग इसको कारगर करने वाले हैं, इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं. तो अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लिया जाता है और वो कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है. कौन सा डिपार्टमेंट? जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस एंड ट्रेनिंग, ये डिपार्टमेंट में उसको भेज दिया गया और उसका सेक्रेटरी ने वहां साइन करके बाकी दफ्तर में भेज दिया.
मतलब जब भी एक डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन जो मिनिस्ट्री के साथ लिंक है उसी मिनिस्ट्री को दिया जाता है और बोला जाता है कि इसको आप लोग काम में लगाइए, इसको आप लोग एग्जीक्यूट कीजिए। तो अकॉर्डिंगली यहां देखिए मंडल कमीशन बना, रिपोर्ट आया 80 में बना था 1979 में, 80 के बाद 89 तक इसमें कोई कदम किसने नहीं लिया। फिर इलेक्शन आया 1989 में, उस टाइम में जनता दल ने इसको एक इश्यू बनाया, आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा, पब्लिक के सामने रखा इस बात को कि मंडल कमीशन को हम लोग वो जो रिपोर्ट आया है 1980 में 27% रिजर्वेशन वाला इसको हम लोग लागू कराएंगे और अकॉर्डिंगली वीपी सिंह का गवर्नमेंट ने उसको लागू करवाया। विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका पूरा नाम, आप दोनों का पूरा नाम याद रखिएगा। ओके, ये 11th प्राइम मिनिस्टर थे। ये आपका 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक लगभग एक साल थे। ओके, तो ऐसे करके ये कारगर हुआ। लेकिन ये बात इतने में ही संपूर्ण नहीं हुआ। इसके बाद मतलब डिसीजन लिया गया, कैबिनेट में भी लिया गया, फिर कंसर्न मिनिस्ट्री को दे दिया गया। मिनिस्ट्री ने ऑफिसर के द्वारा बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं या जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना डिपार्टमेंट है, सब में ये लेटर को भेज दिया कि और सिविल पोस्ट में 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया, गवर्नमेंट पोस्ट में 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। अभी इसके खिलाफ भी और इसके सपोर्ट में भी और इसके अगेंस्ट में भी लोग थे। Some people started to say, those who supported, they say that it was a very good initiative on the part of the government of VP Singh, that the inequality is done away with. So many people were there who did not have a sufficient number of people in the government departments, working in the different government departments. Their population was huge, but the ratio or the proportion of the persons from that community or that strata of the society was very less in the government departments. गवर्नमेंट के अंदर में जितना नौकरी होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स से, ये एससी-बीसी से या ओबीसी से बहुत कम लोग थे। तो ये इसको वेलकम किया गया कि ये अच्छी कदम है और इससे राइट टू इक्वलिटी का और एक मतलब प्रोत्साहन मिला राइट टू इक्वलिटी को, और हमारे तो देश में काफी लोग ने इसको सराहना किया। Okay, then again some people say that no, actually we are going to perpetuate the caste differences, we are going to making the caste difference permanent in the society, actually we are remembering the caste differences, like that different logics were given. Okay, then some people said that it will be it is injustice has been done to those people who are otherwise qualified, okay, maybe getting more marks, but they will not get the job because the question of reservation comes. तो वगैरह वगैरह बहुत बात हुआ कि इससे किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, लेकिन दोनों टाइप के लोग से खूब चर्चा में ये चीज रहा, किसी ने इसका अपोज किया और किसी ने सपोर्ट किया। तो अगर आपको सपोर्ट में एक बात मांगते हैं एग्जामिनेशन में तो आप लिखिएगा, इट वाज एन इम्पेटस, इट वाज एन एनकरेजमेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू इक्वलिटी। ओके, the backward classes also could get government jobs under the reservation. Okay, ये इसका अच्छा साइड लिखिएगा और निगेटिव में लिखिएगा some people believed or some people gave the opinion कि by this way we are going to perpetuate the caste system. ये अगेंस्ट में आप लिखिएगा, एक मैंने सपोर्ट में बताया, एक अगेंस्ट में बताया। बात इतने में भी खत्म नहीं हुआ, द मैटर वेंट अप टू द कोर्ट। वन इंदिरा साहनी वाज देयर, इंदिरा साहनी, लेडी इंदिरा साहनी, SAWHNE हुआ। इंदिरा साहनी ने केस किया। दरअसल काफी जगह में ये केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने सारा केस ले लिया। ओके, जितने भी हाई कोर्ट्स वगैरह में भी हुआ था सारे केस को सेंट्रलाइज किया गया और इसका गवर्नमेंट के खिलाफ जो महिला लड़ रही थी उनका नाम था इंदिरा सोहानी। तो ये केस को कहा जाता है इंदिरा सोहानी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो ऑब्वियसली केस हुआ, मतलब ये 27% रिजर्वेशन को ये लोग चाहते नहीं थे। 11 जजेस का कमेटी बनाया गया क्योंकि ये बड़ा बात था, संगीन मामला था, लेकिन कोर्ट ने भी राय दिया कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन सही है। खाली वहां एक बात और जोड़ दिया गया
कि ये जो एसीबीसी में जिसका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है उसको नहीं लेना चाहिए, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन डाउन है उनको लेना चाहिए। तो फिर से एक लेटर निकाला गया। 93 पहुंच चुका था तब, 1993 का 8 सितंबर में फाइनल लेटर निकला। 8 सितंबर 1993 में फिर से लेटर निकाला गया और कहा गया कि द क्रीमी लेयर, आई मीन the people having the good economic condition, though they belong to the SABC, such people should be excluded. जिसका अच्छा आर्थिक अवस्था था उसको छोड़ देना है, और जिसका आर्थिक अवस्था थोड़ा दयनीय था SLO को लेना है। अच्छा, जो भी हो, तो आपने ये बात को समझ लिया होगा और यहाँ से काफी सा क्वेश्चन होने का आशा है। ठीक है, इसीलिए इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। अगर आप लोग का जो सीरियली चीजों को लाना, आपने कहा इंदिरा सोहानी का नाम सुना है, कहीं मैंने सेक्रेटरी का नाम कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर कहा बीपी सिंह का नाम, फिर कहा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल का नाम। ओके, तो अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों का नाम आया है। तो ये नाम को उचित जगह में आपको रखना पड़ेगा। जो कहानी है, जो सीरियलिटी है, तो कौन से कैरेक्टर कहाँ बैठता है उसको सही जगह में बिठाइए और उसका सही जो उसका काम था उसको देखिए। नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, नाम सब याद रहेगा लेकिन आप वो कहानी को जोड़ नहीं पाते। हिस्ट्री में भी ये प्रॉब्लम होता है आप लोग का। तो आप लोग को सही घटना के साथ सही व्यक्ति का नाम को जोड़ना है, और इंडिविजुअली वो सारा नाम आपका याद है, बट एज ए वर्ड ओनली, एक शब्द के रूप में याद है, उसको आप जोड़ नहीं सकते हो, तो उसको जोड़ने की कोशिश अवश्य करना। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए, और अभी हम लोग थोड़ा जाएंगे पार्लियामेंट। आप लोग जानते हैं ये काम कहां से हुआ, पार्लियामेंट के थ्रू ही हुआ ना। कैबिनेट कहां होता है, पार्लियामेंट में ही होता है। प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो पार्लियामेंट का फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग को व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट हमें क्यों चाहिए, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। पार्लियामेंट हमें क्यों चाहिए, इसको जानने से पहले हम लोग को यह जानना जरूरी है, हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेस है, एक को लोकसभा कहा जाता है और एक को राज्यसभा कहा जाता है। एक को लोकसभा और एक को राज्यसभा। ओके, यहां मैं एक बार विराम देता हूं, इसके बाद इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू। ओके बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा, इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, लोअर हाउस। ओके, ये जो लोअर हाउस है, आपको कंफ्यूजन होता है, ये लोअर हाउस है तो ये अपर हाउस है, तो आप लोग को कभी कभी कंफ्यूजन होता होगा। सिंपल टेक्निक है, लोकसभा के आगे एल है और लोअर के आगे भी एल है, बस लोअर हाउस याद रखिए, तो दूसरा वाला तो अवश्य अपर हाउस होगा ही। सो द सिंपल टेक्निक, यू सी द इनिशियल अल्फाबेट इन लोअर हाउस, इन लोकसभा L is there, similarly in the lower house also L is there, so these two L's you resemble and you will find the answer. Okay, so Lok Sabha is called lower house and it is called upper house. It is called upper house. It is means Rajya Sabha. Now Rajya, again some confusion comes to the students sometimes. Rajya Sabha, what is the Rajya Sabha? In the Rajya, in the state? No. Rajya Sabha, though its name is Rajya Sabha, it is not there in the state capital. It is there in the same parliament, inside the same parliament building. जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके अंदर में ही लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। राज्यसभा, वन लॉजिक ऑफ सेइंग इट राज्यसभा इज दैट इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स, not directly by the citizens but by their representatives, I mean by the MLAs. Okay, ये एक लॉजिक है इसको राज्यसभा कहने का। दूसरी बात है, इट्स मेंबर्स डू नॉट हैव ए फिक्स्ड कंस्टिट्यूएंसी। जैसे कि लोकसभा का मेंबर के साथ उसका कंस्टिट्यूएंसी आता है, ये तेजपुर लोकसभा कंस्टिट्यूशन का MP है। ओके, ये कोकराझार कंस्टिट्यूएंसी का MP है। लेकिन जो राज्यसभा का MP है उसके साथ कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं होता है, वो सारा राज्य होता है।
ओके। और राज्यसभा का कंस्टिट्यूएंसी मतलब राज्यसभा का जो एमपी है उसका संख्या कम होता है। तो मैंने दो लॉजिक दिया, एक तो इसका मेंबर्स को राज्य का मतलब स्टेट का एमएलएस वोट देते हैं, हम लोग डायरेक्टली नहीं देते हैं, किनको? राज्यसभा का एमपी को। ये एक लॉजिक है इसको राज्यसभा कहने का। और दूसरी बात, ये सारे राज्य के लिए होता है एमपी, इसके एमपी के पीछे कोई कंस्टिट्यूंसी का नाम नहीं होता है। अच्छा, तो यहां तक आप लोग ने देख लिया। आप लोग ने बार बार इलेक्शन सुना होगा। जो इलेक्शन होता है वो हम लोग लोकसभा के एमपी के लिए इलेक्शन देते हैं, वोट देते हैं, एमएलए के लिए वोट देते हैं, और बाकी जो लोकल बॉडीज है, पंचायत या हमारा जो काउंसिल है, यहाँ इसके लिए वोट देते हैं। तो एमपी इलेक्शन मीन्स दोनों एमपी कहा जाएगा, राज्यसभा का भी एमपी, ये भी एमपी। लेकिन हम लोग जो एमपी इलेक्शन आ रहा है, एमपी इलेक्शन आ रहा है 2014 में होगा, 19 में होगा, अभी 2024 में होगा, ये एमपी मतलब लोकसभा का एमपी, राज्यसभा का एमपी नहीं है। राज्यसभा का एमपी एक ही बार में सारा खाली नहीं होता है, उसको मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा। तो यहां तक आप लोग जान लीजिए। और आर्टिकल 245 में, आर्टिकल 245 आपका बुक में नहीं लिखा, ये पार्लियामेंट का पावर्स के बारे में यहां लिखा है कि ये कानून बना सकता है। ओके, सारा देश के लिए या कोई स्टेट के लिए लागू करवा सकता है। ठीक है, मतलब सेंट्रलिस्ट का बात है, लेकिन स्टेट में कोई लागू हो रहा है। तो आर्टिकल 245 में इसका जो कानून बनाने का पावर है, इसको लिखा गया है लोकसभा का। अभी हम लोग पार्लियामेंट का पावर पढ़ेंगे, मतलब ये क्यों चाहिए, ये खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री, इतना ही लिखिए। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी। व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट? अभी का टॉपिक ये है, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट? तो यहां लिखिए, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर लॉ मेकिंग। पार्लियामेंट is the highest, parliament is the final authority for making laws, highest authority for making laws. ओके, कानून बनता है पार्लियामेंट से, भले उसमें पीछे प्रेसिडेंट का साइन चाहिए, वो तो साइन नॉर्मली करते ही हैं, आप लोग जानते हैं, उनका पोस्ट ऑर्नामेंटल होता है। तो जो बहस होना है, जो बिल पास होना है या नहीं होना है, वो कहाँ होगा? पार्लियामेंट में ही होगा, दोनों हाउस में। ओके, इसके बाद आता है हाँ, पार्लियामेंट कंट्रोल्स द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में यहां अपोजिशन भी आता है। पार्लियामेंट कहने से जो रूलिंग पार्टी का गवर्नमेंट साइड का जो एमपी, ऑपोजिशन पार्टी का एमपी, सबको गिना जाएगा। पार्लियामेंट कंट्रोल्स, आप लोग शॉर्ट में लिखिए, पार्लियामेंट कंट्रोल्स द गवर्नमेंट। इतने लिखने से हम लोग समझ जाएंगे आप कहना क्या चाहते हैं। ओके, कंट्रोल्स द गवर्नमेंट, सेकेंड बात हो गया। थर्ड में आइए, पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव। पार्लियामेंट कंट्रोल्स गवर्नमेंट मनी, खास करके लोकसभा। गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है, बजट है, प्रोजेक्ट है, कौन प्रोजेक्ट कहां चल रहा है, इसका सारा हिसाब लोकसभा में देना होता है गवर्नमेंट को। ओके, तो गवर्नमेंट का बजट पहले ही तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में सुनाई जाएगी। ठीक है, ये बस बाकी गवर्नमेंट का हिसाब, कौन सी बजट में कौन सी डिपार्टमेंट के लिए कितना पैसा दिया, कौन सा प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा दिया, या उसका हिसाब
सारा किसको देना होता है, पार्लियामेंट को देना होता है, गवर्नमेंट को। ओके, 1 2 3 पार्ट हो गया। और एक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। ओके, 1 1 2 3। अभी 1 को इरेज करता हूं और यहां 4 लिखता हूं। ओके, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट बॉडी, पार्लियामेंट is the highest body, parliament is the highest body for debate and discussion on any इशू। मतलब देश में वितर्क करने का, डिबेट करने का या अपना अपना मत रखने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा ऑफिस, सबसे बड़ा आलय, घर, मतलब दफ्तर है पार्लियामेंट। बहस गांव में भी होता है, पंचायत में बहस, हमारा म्यूनिसिपैलिटी की ऑफिस में बहस होता है। मतलब मैं जो अलग अलग इशू को लेकर के, ठीक है, कहीं रास्ता बनाने को लेकर के, कहीं नहीं बनाने को लेकर के, गवर्नमेंट का मनी कैसे इस्तेमाल किया जाए इसको लेकर के। ओके, कौन सा गांव में इस बार रास्ता बनाना है, एक मेंबर बता रहा है ये गांव में बनाना चाहिए, दूसरा मेंबर बता रहा है ये गांव में बनाना चाहिए। तो अलग अलग बात में लोकल लेवल में भी डिबेट होता है, लेकिन यही डिबेट का अल्टीमेट रूप कहां होता है, पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट में जो डिबेट हुआ वही देश का सबसे बड़ा डिबेट है। मतलब ओके, वहां अगर डिबेट मतलब वो बिल को सपोर्ट करने वाले लोग ज्यादा हो गए तो पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा। अगर उसको सपोर्ट करने वाले कम हो गए तो कानून नहीं बन पाएगा। तो अल्टीमेटली गांव में भी बहस होता है, पंचायत में होता है, म्यूनिसिपैलिटी में होता है, एमएलए के बीच में भी डिबेट होता है, लेकिन डिबेट करने का या होने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट। ओके, उसी से ये निर्णय होता है कि वो चीज कानून बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। बिल मतलब वो कोई पैसा का बिल नहीं है, जो इश्यू हम लोग जिस टॉपिक में डिबेट हो रहा है उसको बिल कहा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये 4 फंक्शन पार्लियामेंट का जरूर पढ़िएगा। इसके बाद आपको आता है लोकसभा और राज्यसभा में कौन बड़ा मतलब कौन पावरफुल है। ये भी एक क्वेश्चन आपको आता है, वेदर द लोकसभा इज पावरफुल और द राज्यसभा इज पावरफुल। यहाँ बढ़िया से इसी तरह आपको शॉर्ट में लिखना है, 2-3 लाइन, 2 लाइन या 1 लाइन में लिखिए कि एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हिच हाउस इज मोर पावरफुल, शॉर्ट जल्दी पढ़ लेंगे। ओके, व्हिच हाउस इज मोर पावरफुल, और इसका आंसर है लोकसभा और द लोअर हाउस इज मोर पावरफुल। ओके, अभी लोकसभा को पावरफुल कहने का एक रीजन क्या है, मानेगी आपका व्हिच हाउस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्हिच हाउस of the parliament, which house of the parliament is more powerful, is more powerful। तो इसमें आपको लिखना आंसर लोकसभा। आंसर क्या है, लोकसभा और द लोअर हाउस। ओके, लोकसभा इज मोर पावरफुल, ओके, ये हो गया। इसमें रीजन देना होता है आपको। नंबर 1 मैं बताता हूं, ऑर्डिनरी बिल मतलब जो मानी बिल नहीं है, ऐसा ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा में भी पहले पास होकर के लोकसभा में आ सकता है, या लोकसभा में पहले पास होकर के भी राज्यसभा में जा सकता है। दैट मीन्स ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द आइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बट द मनी बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन द लोकसभा, देन ओनली इट विल बी सेंट टू द राज्यसभा, एंड द राज्यसभा can suggest some changes, but the Lok Sabha is not bound to follow the changes, and at best the Rajya Sabha can make a delay of 14 days,
2 सप्ताह के अंदर में दैट बिल द राज्यसभा shall have to return back to the Lok Sabha, and if the bill is not returned, then it will be assumed that it has been passed by the Rajya Sabha. मतलब 14 दिन के अंदर में बिल को पास ना करना किसके बराबर माना जाएगा? वो बिल को राज्यसभा ने एक्सेप्ट कर लिया, पारित कर लिया, इसके बराबर माना जाएगा। तो यहाँ आपको ये जो 14 दिन का मोहलत है, टाइम है, ड्यूरेशन, इसको भी याद रखना है मानी बिल के लिए। ओके, तो मानी बिल किसको कहा जाएगा? मानी बिल इज ए बिल दैट सोलली कंसर्न्स टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जो बिल टैक्सेशन टैक्स के साथ या रेवेन्यू के साथ या टैक्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो पैसा का बात है उसमें, ऐसा बिल को मानी बिल कहा जाएगा। और ये पहले लोकसभा में इसका उत्थापन होना जरूरी है, उसके बाद ही राज्यसभा में जाएगा। तो ये ज्यादा पावरफुल हुआ लोकसभा। तो एक पॉइंट ये हुआ कि मानी बिल आर इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन द लोकसभा, देन ओनली दीज आर सेंट टू द राज्यसभा। तो ये एक ग्राउंड हुआ पावरफुल होने का। दूसरा बात, कभी अगर दूसरा एक पॉइंट कि देश के लिए कोई एक मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां जल्दी डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन एक हाउस में पास होता है, दूसरा में नहीं होता है, या ऐसे करके एक इंपॉर्टेंट मामला उलझ रहा है। तो when such a situation comes that the issue is very important for the national purpose but the bill is not being passed in both the houses, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि the president has a power, he can summon a joint meeting of the joint session, इसको कहा जाएगा, जिसमें joint session of the parliament, मतलब joint session of the two houses के लोग एक ही साथ बैठेंगे। ओके, और ऐसे ज्वाइंट सेशन में भी लोकसभा का ही जीतने का ज्यादा चांस होता है, क्योंकि उसका मेंबर बहुत ज्यादा होता है राज्यसभा से। तो ये इसका दूसरा फायदा हुआ। दूसरा फायदा मतलब लोकसभा हैज द मैक्सिमम चांस ऑफ विनिंग इन द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। बस एक लाइन में लिख दीजिए, हो गया। तो आप इस तरह से लिखिए कि हम लोग को पता लगे कि आपको बहुत कुछ आता है, भले कम लिखिए। उसमें आइए, ये 14 डेज का बात मैंने आपको बताया। लास्टली मोस्ट इंपोर्टेंट, लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओनली ए पर्सन। हाँ, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? लोकसभा का, जिसका पास लोकसभा का ज्यादा मेंबर का सपोर्ट हो। हालांकि राज्यसभा से भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, 6 महीना के अंदर में उसको पॉपुलैरिटी शो करना होता है। वो इतना मैं एक्सेप्शन में आपका नहीं जाऊंगा। तो ये जो सरकार के खिलाफ जो अनास्था प्रस्ताव कहा जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, सो द नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट, द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। तो नो कॉन्फिडेंस कहां आएगा? कौन करेगा? लोकसभा करेगा। ये भी लोकसभा का एक स्पेशल पावर हुआ, मतलब जो राज्यसभा नहीं कर पाता है, नहीं होता है उसके पास ये पावर। तो आपको ये 3 बात लिखना है। मनी बिल जो राज्यसभा लोकसभा में पहले होगा। दूसरा बात आया आपका मनी बिल हुआ, और दूसरा बात हुआ जे मनी बिल में ये 14 दिन का ही लेट कर पाएंगे, उसके ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा राज्यसभा। जो चेंज करके भेजेगा वो भी लोकसभा रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है। ओके, और नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला, ये 3 चीज आपको यहां लिखना है। और मैं अभी समाप्ति की ओर जा रहा हूं। ओके, मेजर पार्ट समाप्त होगा, उसके बाद कुछ रहेगा। अभी शॉर्ट में मैं एक बात बताता हूं। मैंने अभी 2 चीज बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें 2 ब्रॉड क्वेश्चन, वर्किंग ऑफ द व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट और व्हाट डू यू नीड ए पार्लियामेंट। और दूसरा वाला मैंने आपको बताया व्हाई डू यू थिंक दैट द लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा, और व्हिच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल, एक्सप्लेन। ओके, ये हो गया। लास्टली मैं 2 वर्ड आपको बताऊंगा, इसके ऊपर में पैराग्राफ है आपके वहां, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो ये जो मिनिस्टर हुआ, एमपीज हुए, एमएलएज हुए, ये लोग क्या है? ये लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। ये इलेक्शन के द्वारा जीत करके जाते हैं। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? जो ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर या हमारे स्टेट का जो सिविल सर्विस पास किया हुआ ऑफिसर, एसीएस ऑफिसर,
अलग अलग स्टेट का होता है, अपना अपना होता है, और सारा यूनियन के लिए होता है IAS ऑफिसर। तो ये ऑफिसर सब क्या हुआ, परमानेंट एग्जीक्यूटिव हुआ। तो एक मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव है, और उसके अंदर में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी या मेन सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी ये सब भी एग्जीक्यूटिव ही है। लेकिन वो मिनिस्टर क्या है, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हम लोग टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो मिनिस्टर अगले बार नेक्स्ट बार इलेक्शन में नहीं भी जीत पाता है। सो इफ इन द नेक्स्ट इलेक्शन द मिनिस्टर हैपेंस टू फेल इन द इलेक्शन, दैट मीन्स ही इज नॉट ए विनर इन द इलेक्शन, ही इज नॉट सेंट टू द लोकसभा, ऑब्वियसली वो हार गया, तो क्या होगा, वो तो 5 साल मिनिस्टर रहा। मतलब पॉलिटिकल जो लोग हैं वो 5 साल के लिए आते हैं, फिर जीतने से 10 साल के लिए हो जाएंगे, फिर जीतने से 15 साल के लिए हो जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन नहीं भी तो जीत सकता है। तो इसीलिए वो लोग को टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, या अच्छी वर्ड है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर नॉट परमानेंट, ये मिनिस्टर्स लोग होते हैं। और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हुआ, वो ऑफिसर्स जो है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। क्यों? सरकार बदलने से भी ऑफिसर नहीं बदलता है, उनका वो नौकरी है, वो उनका रिटायरमेंट डेट तक वो नौकरी चलेगा। ठीक है, तो वो तो नौकरी कर रहे हैं, सरकार बदलती है, कभी प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं, कभी पार्टी बदलते हैं, लेकिन वो तो अपना नौकरी कर रहे हैं। तो ये लोग नौकरी कर रहे हैं, एक एग्जामिनेशन में पास हो गए लोग ऑफिसर्स बनते हैं, सीनियरिटी बेसिस में लोग का प्रमोशन होता है, या परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन होता है, वो एक लाइन अलग सा है। एक पॉलिटिकल इलेक्शन का लाइन हुआ और एक एग्जाम का लाइन हुआ। तो आपने समझ गए होंगे, ऑफिसर्स IAS ऑफिसर, एक IAS ऑफिसर परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, और एक मिनिस्टर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव परमानेंट नहीं होता है। ओके, तो ये मैंने ज्यादा इसका हिस्सा कवर कर लिया, अब थोड़ा ही बचा है, यह शायद मैं आपको दूसरी क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, इसको ध्यान देके पढ़िएगा। थैंक यू।